سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ معروف ماڈل اور اداکارہ گیتی آرا کے شوہر کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گیتی آرا نے اپنے سابق شوہر احسان شوکت کے خلاف FIA سائبر ونگ کو درخواست دی تھی۔ سابق شوہر نے اداکارہ کی نازیبا ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھیں۔ گیتی آرا کی احسان شوکت کے ساتھ 2010 میں شادی ہوئی تھی۔ مشہور ماڈل اور اداکارہ گیتی آرا کے شوہر کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گیتی آرا نے اپنے سابق شوہر احسان شوکت کے خلاف FIA سائبر ونگ کو درخواست دی تھی۔ سابق شوہر نے اداکارہ کی نازیبا ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھیں۔ گیتی آرا کی احسان شوکت کے ساتھ 2010 میں شادی ہوئی تھی اور گیتی آرا نے یہ درخواست FIA میں دی تھی، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی درخواست پر 28 جنوری کو ہونے والا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اجلاس 2 فروری کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ایک بار پھر سے ملتوی ہو گیا ہے اور پاکستان کی درخواست پر 28 جنوری کو ہونے والا یہ اجلاس ملتوی کیا گیا ہے۔ اجلاس 2 فروری کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم پاکستان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی، جس کے بعد یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل سینٹ سے منظور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا اب کب دوبارہ یہ اجلاس بلایا گیا ہے؟ جی، IMF کا جو 28 جنوری کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونا تھا وہ اب 28 جنوری کی بجائے اب جو ہے وہ 2 فروری کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور IMF کا یہ اجلاس جو ہے پاکستان کی درخواست پر ملتوی کیا گیا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان سینٹ آف پاکستان سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری سے متعلق جو ترمیمی بل ہے وہ منظور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور آج جو سینٹ کا اجلاس تھا وہ 28 جنوری یعنی جمعہ کی صبح تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جو IMF کی کنڈیشن تھی وہ 28 جنوری سے پہلے حکومت پاکستان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ترمیمی بل منظور کرانا تھا، لیکن حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکی اور حکومت نے IMF سے یہ درخواست کی ہے کہ اب 28 جنوری کو ہونے والا جو IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے وہ ملتوی کر کے 2 فروری کو اب اجلاس بلایا جائے۔ بہت شکریہ وقاص عظیم تفصیلات کے لیے۔ FATF کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ FBR نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے قوانین تبدیل کر دیے، جس کے تحت ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر نئی شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ نئے قوانین میں پراپرٹی ڈیلرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے DNFBP پر سزا یافتہ افراد سے کاروبار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ FBR نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا ہے کہ وہ سزا یافتہ افراد کے بینیفیشل آنر سے کاروبار نہ کریں اور نہ ہی سزا یافتہ افراد کو DNFBP سینئر عہدہ دیا جائے۔ کرپٹو کرنسی کے نام پر فراڈ کرنے والے ملزم کے خلاف ریفرنس دائر کرنے میں تاخیر پر سپریم کورٹ برہم۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ 2 سال ریفرنس دائر نہ کرنا نیب کی مجرمانہ غفلت ہے۔ نیب ریفرنس دائر نہیں کرتا اور الزام عدالتوں پر آ جاتا ہے۔ میگا سکینڈل میں بھی تفتیش کا یہ حال ہے کہ بنیادی معلومات بھی نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کا سنا ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہریوں کو پیسے کے عوض ڈیجیٹل کوائن دیا جاتا ہے۔ ملزم وسیم زیب نے شہریوں سے 1 ارب 70 کروڑ وصول کر کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس میں ڈال دیے۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ پیسے لینے کا الزام ہے، کوئی رسید سامنے نہیں آئی ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ رسید کے بغیر پیسہ لینا ہی تو ملزم کا اصل کمال ہے۔ عدالت نے کرپٹو کرنسی کے نام پر فراڈ کرنے والے ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ PTI کا نیا پاکستان عالمی درجہ بندی میں تاریخ کی کرپٹ ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران خان کے کرپشن مخالف نعروں کا پول کھول دیا۔ کرپشن بڑھنے کی وجہ سے پاکستان عالمی رینکنگ میں 180 سے 140 کے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو معتبر بین الاقوامی ادارہ قرار دیتے تھے، اس کے رپورٹس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور حکومت کو کرپٹ قرار دینے کے لیے اس کے رپورٹس کے حوالے دیتے تھے۔ ان کے ماضی کے کچھ بیانات ایک نظر آپ بھی دیکھیے۔ پاکستان میں کرپشن کی جڑیں کتنی گہری ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کیسے پتہ چلا کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا سکور اور رینکنگ کیوں کم ہے؟ 24 نیوز اہم نکات سامنے لے آیا۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کے نمبر 37 سے کم کر کے 20 اور ورلڈ اکنامک فورم نے 43 سے کم کر کے 41 کر دیے۔
इकोनॉमिस्ट ने वजारतों की तरफ से फंड्स और वसाइल के गलत इस्तेमाल और रिश्वत की बुनियाद पर नंबर दिए। चंद रोज कबल वजीर आजम और उनके साथी इकोनॉमिस्ट की तारीफें कर रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टैक्स ठेकों फैसलों के लिए रिश्वत को बुनियाद बनाया। डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने सरकारी इदारों, पार्लियामेंट और अदलिया में करप्शन की बुनियाद पर नंबर दिए। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। वफाकी काबीना का इजलास मुशीर एहतसाब के चले जाने पर कोई ना बोल सका। वज़ीर आज़म बोले और ना ही कोई वज़ीर। ज़राए के मुताबिक पहले काबीना इजलास में शहजाद अकबर की ब्रीफिंग्स पर वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते थे और वज़रा डेस्क बजाते थे। काबीना इजलास से पहले और बाद में शहजाद अकबर के मामले पर चहमगोइयाँ होती रहीं। काबीना डिवीज़न ने ताहाल शहजाद अकबर को डी नोटिफाई नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद इसका जायज़ा लेंगे कि किस बुनियाद पर यह रिपोर्ट मुरतब हुई है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, पीटीएम ने फैसला सुना दिया। महंगाई मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत को मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुका। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करे। इमरान खान को नाअहल और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते। मुस्लिम लीग नून का रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 23 मार्च को मुल्क भर से अवाम हुकूमत को आखिरी धक्का लगाने आएंगे। फॉरेन फंडिंग केस से साबित हो गया कि इमरान खान ने करोड़ों रुपए का गबन किया। सादिकाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को लूटने वालों का साफ शफाफ एहतसाब होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसमें कोई मुल्क दुनिया में करप्शन की दर्जा बंदी में 16 मुकाम नहीं गिरा। जैसे कि इन्होंने रुपए को फुटबॉल बना के डॉलर के मुकाबले में बेइंतहा गिरा दिया और रुपए की गिरावट की कोई इंतहा नहीं रखी, इसी तरह पाकिस्तान की करप्शन में दर्जा बंदी पर भी कोई ब्रेक नहीं रखा, बल्कि सारे ब्रेक्स खोल के 16 दर्जे पाकिस्तान को गिराया है, जो मुल्क के लिए पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदगी की बात है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम तय गए हैं। ज़राए के मुताबिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ज़ेली तंजीमों के इजलास में बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च के लिए 1 लाख शुरका का हदफ दे दिया। इजलास में फैसला हुआ कि बिलावल भुट्टो के साथ 1 लाख अफराद सफ़र करेंगे। शुरका की तादाद 80,000 से किसी सूरत कम ना हो। हर ज़िला कम होने वाले शुरका की तादाद पूरी करने का जिम्मेदार होगा। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने मीडिया हाउसेस के नाम पर करोड़ों रुपए लिए। अल जलील गार्डन से भी करोड़ों का फ्रॉड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना और डेंगू में काम करने वाले डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह ना मिल सकी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का फिर इनकार। वज़ीर सेहत ने डॉक्टर से मुलाकात में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर्स की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। डॉक्टर्स को कहा, आपकी ज़रूरत नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह क्यों करें। सालों का मसला समझ आ गया। आप 6 महीने के बाद फिर 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद शुरू कर दूंगी, 6 महीने और एक्सटेंड। मैं तो कम से कम 1 साल ही कर दिया। हम डेंगू भी कवर कर रहे हैं। क्यों करे एक्सटेंड? आपको वजह तो बताइए। डेंगू भी तो कवर कर रहे हैं। नीड समबडी, व्हाई वुड आई नीड दैट? जमात इस्लामी सिंध के नए बलदियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिंध असम्बली के सामने धरना 27वें रोज में दाखिल हो गया। जमात इस्लामी आज कराची के 5 मकामात पर धरना भी देगी। जमात इस्लामी सिंध की जानिब से नए बलदियाती कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और गुज़श्ता कई रोज़ से धरने का ये सिलसिला जारी है, जो कि अब 27वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना है कि कराची के 5 मकामात पर धरना दिया जाएगा और माड़ीपुर रोड, सोहराब गोट, कायदाबाद, हसन स्क्वायर और 5 स्टार चौरंगी पर यह एहतजाज किया जाएगा, जहां से रैली की शक्ल में ये तमाम तर मुजाहिरीन यहां पर पहुंचेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से इन 5 मकामात पर धरना देने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि बलदियाती कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और इसे काला कानून करार देते हुए इसके खिलाफ अदालत में भी दरख्वास्त दायर की गई थी।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम रहमान का ये कहना है कि 5 मकामात पर धरने जारी रहेंगे और एहतजाज के दायरा कार वसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये बल्दियाती कानून बिल वापस नहीं होता है तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। जमात इस्लामी सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज है और सिंध असम्बली के सामने धरना जो कि गुज़िश्ता 27 रोज़ से जारी है और यहाँ पर ना सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान बुज़ुर्ग जवान मौजूद हैं बल्कि बच्चे भी इस धरने में शिरकत के लिए पहुँचे थे। और यहाँ पर ख़िताब करते हुए हाफिज़ नईम रहमान का ये कहना था कि यह एहतजाज का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। उनकी जानिब से कराची के 5 मकामात पर धरना देने का ऐलान किया गया है जिनमें माड़ीपुर रोड, सोहराब गोड, कायदाबाद, हसन स्क्वायर और 5 स्टार चौरंगी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि उनका ये कहना था कि अगर ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते हैं तो ये एहतजाज का दायरा कार कराची से बाहर दीगर शहरों में भी बढ़ाया जाएगा और पूरे सूबे में शहरों में ये धरने दिए जाएंगे और एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात भी हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था कि इस मामले को कोशिश करेंगे कि मिल बैठ कर खुश उसलूबी से हल कर लिया जाए, ताहम कोई पेशरफ्त इसमें अभी दिखाई नहीं देती है। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। दानियल बताएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है धरने की? देखिए ज़ीशान, जमात इस्लामी के तहत जो धरना है वो 26 रोज़ उसको मुकम्मल हो चुके हैं। आज से 27वें रोज़ का आगाज़ हो चुका है। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी सूबे सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि इस बल्दियाती कानून के तहत कराची का जो हक़ है वो कराची से छीनना चाहती है सिंध हुकूमत, इसी पर यह एहतजाज किया जा रहा है। और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान ने आज ये ऐलान किया है कि आज कराची शहर में शाम के औकात में 5 मकामात पर अलामती धरना दिया। माड़ीपुर रोड, सोहराब गोड, कायदाबाद, 5 स्टार चौरंगी और हसन स्क्वायर, ये 5 वो मकामात हैं कि अगर यहाँ पर एहतजाज किया जाए तो पूरा का पूरा कराची जो है उसमें शदीद ट्रैफिक जैम हो सकता है। इन 5 मकामात पर धरने का ऐलान किया गया है और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान का मौक़िफ़ है कि जब तक इस बल्दियाती कानून को जो पीपल्स पार्टी ने पेश किया है इसको मुस्तरद नहीं करती हुकूमतें और अपोजिशन, उस वक्त तक जमात इस्लामी सरापा एहतजाज रहेगी। ठीक है दानियल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद का पावर लूम सेक्टर एक बार फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पावर लूम मालिकान ने 1 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई की वजह से धागे और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पावर लूम सेक्टर एक बार फिर तबाही के दहाने पर। पावर लूम मालिकान ने 1 फरवरी से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावर लूम ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिद रामे कहते हैं हुकूमत का जालमाना इकदाम है कि बिजली का यूनिट 24 रुपए से बढ़कर 34 रुपए तक कर दिया, जिसकी वजह से लूमें बंद करने जा रहे हैं। हुकूमत का बहुत बड़ा जालमाना फैसला है कि 3 माह के अंदर इन्होंने बिजली के रेट्स 24 रुपये जो कि बहुत ज़्यादा थे वो 32 से 34 रुपये तक ले गए हैं। ये इतना इजाफा हम लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फैसलाबाद में या कोई भी फैक्ट्री जो है वो इतने ज़्यादा बिजली के रेट्स को जो है वो अफोर्ड नहीं करती, इतना तो उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं था। पावर लूमें बंद होने से लाखों मजदूरों का रोजगार भी दांव पर लग गया। मजदूर कहते हैं कि हुकूमत ने मजदूरों को कुछ नहीं दिया। इस हुकूमत को ये पता ही नहीं है, बिल्कुल इन्हू यही पता सरकारी मुलाजम वापड़ा वा सुई गैस आ होर महकमे आ, सिर्फ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 रुपया। पावर लूम मालकान लूमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने जा रहे हैं और कल घंटाघर में एहतजाज भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सोलर पैनल समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर सेल्स टैक्स वापस न लिया गया तो एहतजाज करेंगे और मार्केटें भी बंद कर देंगे। कराची डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान कहते हैं हुकूमत ताजरों से मुशावरत के बगैर रातों रात फैसले करके नाफिज कर देती है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। एसोसिएशन के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रिजवान इरफान ने कहा कि हुकूमत ने मोबाइल फोन और लैपटॉप पर कई गुना ड्यूटीज और टैक्स आयद कर दिया है, जिसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। टैक्स वापस ना लिए गए तो एहतजाज करेंगे। एक मोबाइल फोन जिसकी आईफोन की जो ड्यूटी थी वो 37,000 रुपये भरते थे हम, 37,000 रुपये उसकी ड्यूटी थी। अभी उसकी जो ड्यूटी बनाई है वो 80,000 रुपये कर दी है। हमारे यहाँ बड़े तादाद में दुकानदारों ने मोबाइल ड्यूटियाँ 15 तारीख को उन्होंने डाउनलोड की PTA पे। उसके बाद उनको बताया गया कि आपकी जो है रिवर्स होगी
आपकी वो होगी 80,000 रुपये। इस मौके पर कराची डीलर एसोसिएशन के नायब सदर सलीम मेमन बोले, सेल्स टैक्स का बम हम पर छोड़ दिया गया है। ये सोलर है वाहिद जो आप गांव गोद कहीं भी लगा सकते हो। सबसे पहले जो आपको पता है कि डैम की बिजली बनती है, उसके बाद ये विंड की बिजली बनती है, और सोलर इतना आसान है कि आप अपने घर पे लगा सकते हो। विंड बड़ा महंगा है क्योंकि वो बड़ा 6-7 करोड़ रुपए का एक बनता है। तो सोलर जो है आप समझ लो कि इस वक्त जो है हमारे किसान भाई समझ लो, या हमारी खेती बाड़ी समझ लो, या हमारे घरों पे अभी तो ठंडी है, लोड शेडिंग होती है, तो ये सोलर बड़ा काम आता है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि सेल्स टैक्स आयद होने से सोलर पैनल और इससे मुंसलिक दीगर आलात की कीमतें 25% तक बढ़ जाएंगी। हुकूमत मुकामी सतह पर सोलर पैनल समेत दीगर आलात की तैयारी में मदद दे तो ये सनत तरक्की के साथ साथ कौमी खजाने में इजाफे का सबब बन सकती है। ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज को भी एक माह भी मुकम्मल नहीं हुआ कि स्टॉप्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने लगे हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कराची में मिन्नतों, मुरादों और तवील इंतजार के बाद ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू हुआ। मंसूबे को एक माह भी मुकम्मल नहीं हुआ कि इसके स्टॉप्स जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने लगे। सुरजानी टाउन में अब्दुल्ला चौक स्टॉप के एलिवेटर्स अभी से खराब हो गए। कम तवज्जही के बायस एलिवेटर के 8 स्टेप्स निकल कर गिर गए। लोहे के स्क्रू भी मुनश्शियात पेशा अफराद खोल कर ले गए। मुख्तलिफ स्टॉप्स पर दर्जनों गार्ड्स होने के बावजूद एलिवेटर्स की हिफाजत न होने के बराबर है। बास जगहों पर मंसूबे के आगाज से पहले ही एलिवेटर्स खराब थे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत या तो मुकम्मल मंसूबे के बाद बस सर्विस का आगाज करती या फिर इनकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम किए जाते। सीढ़ियाँ गायब हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी लगाए, लेकिन लिफ्ट दी हुई है इन लोगों ने, इसी वजह से लिफ्ट दी हुई, कोई माजूर हो या कोई भी व्हील चेयर वाला हो तो लिफ्ट में जा सके। पहले मुरम्मत करते, काम इंसान को कंप्लीट करना चाहिए। पाकिस्तान का तो कोई भी जो हुक्मरान है ना, वो खुद ही अच्छा नहीं है तो आवाम कैसे अच्छी बनेगी। सीढ़ियाँ ना बहुत थकने वाली सीढ़ी सही नहीं बनाया है, ये 4 इंच के टप्पे बनने चाहिए। ये सीढ़ी ये तो ऐसा बनाया है ना, कोई दिल का मरीज, हार्ट अटैक का मरीज जा नहीं सकता है। ग्रीन लाइन बस सर्विस की सफाई और हिफाजत की शहरियों से तो बारहा अपील की जाती है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि वफाकी हुकूमत सारा इल्जाम अवाम पर डालने के बजाय अमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मछली चौक से कैनब तक तामीर होने वाली सड़क का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं वफाक को कोई तौफीक नहीं हुई कि कराची में तरक्याती काम कराए जाएं, ये पीपल्स पार्टी का विजन है। ये रिपोर्ट देखिए। मछली चौक से कैनब तक तामीर होने वाली सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इतने सालों में वफाक को तौफीक नहीं हुई कि कराची की सड़कों की तामीर कराई जाए, ये बेड़ा भी पीपल्स पार्टी ने ही उठाया। पाकिस्तान के किसान का हाल है, पाकिस्तान के मीडिया वर्कर का हाल है, पाकिस्तान के डॉक्टर का, हेल्थ वर्कर्स का हाल है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हाल है। मैं समझता हूँ उससे थोड़ी सी एहसास पैदा करें, शर्म पैदा करें और लोगों को रिलीफ देने का काम करें, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि 3.5 साल में आपने सिर्फ यू टर्न लिया है, आवाम की खिदमत के लिए आपने कोई काम नहीं किया। तमाम काम सिंध हुकूमत इस शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए जा रही है। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने माड़ीपुर की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब का। आपका मारीपुर रोड फौरी तौर पर तामीर हुआ और आपने देखा कि आज पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। सिर्फ रहने वाले यहाँ लोग नहीं, अपनी तफरीह के लिए जो लोग आते हैं वो भी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के विजन के मुताबिक तरक्की का सफर जारी है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मामन खुसूसी अली अहमद जान और मोहम्मद आसिफ खान समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नुसरत गनी ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है। लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने इल्ज़ामात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। काउंसलर असलम चौधरी ने नुसरत गनी के साथ होने वाले वाक़े को शर्मनाक करार दिया। उनका कहना था कि नुसरत गनी ने जब बोरिस जॉनसन को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया तो वज़ीर आज़म ने उन्हें चुप रहने का मशवरा दिया, जो काबिल मज़म्मत है। काउंसलर अहमद शहजाद ने कहा कि बोरिस जॉनसन खुद कई मरतबा मुसलमानों बारे शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। मैनेजर द मास्क एंड इस्लामिक सेंटर ब्रेंड यासिर आलम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जाएँ।
मेट पुलिस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी के मुतादिद वाक़यात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डाउनिंग स्ट्रीट और वाइट हॉल में कोरोना के ज़वाबित की मुमकिन खिलाफ वर्जियों के हवाले से तहकीकात करेगी। मेट पुलिस कमिश्नर क्रिसेड डॉडक के लंदन असम्बली में गुज़िश्ता 2 साल के वाक़यात की तहकीकात करने की यकीन दहानी। 10 डाउनिंग की पार्टी सामने आने पर अपोजिशन जमातें और कुछ हुकूमती मेंबरान वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने ताज़ा तरीन एतराफ़ किया है कि 2020 में पहले लॉकडाउन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने डाउनिंग स्ट्रीट में सालगिरह की तकरीब मनाई। इससे कबल बोरिस जॉनसन ने मई 2020 में डाउनिंग स्ट्रीट में एक गार्डन पार्टी में शिरकत का एतराफ़ किया था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में गुज़िश्ता बरस शहज़ादा फ़िलिप की आखिरी रसूमात से एक रोज़ कबल भी 2 तकरीबात का इंकशाफ हुआ था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। PSL 7 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। काउंटडाउन जारी, PSL का मेला सजने में सिर्फ एक दिन रह गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। नेशनल स्टेडियम कराची को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। स्टेडियम के अंदर और बाहर दरख्तों पर भी लाइटें लगा दी गई। PSL मेले की इफ्तिताई तकरीब के लिए रिहर्सल भी जारी है। शायकीन को पैराग्लाइडिंग शो से लुत्फानंदोज करने के लिए पैराग्लाइडिंग भरपूर तैयारी में मगन। ग्राउंड में मुनफरिद एंट्री की रिहर्सल की। इवेंट में धाक बिठाने के लिए टीमें भी अपने हथियारों को धार लगाने में मसरूफ हैं। मंगल को कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रैक्टिस मैच में मद्दे मुकाबले आईं। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी ने भी प्रैक्टिस मैच में एक दूसरे का खूब इम्तिहान लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। मेगा इवेंट के लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी बड़े होंगे। कराची पुलिस ने PSL 7 के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। DIG स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट मकसूद मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में ज़िला इंतजामिया, पुलिस, फौज, रेंजर्स और PCB हुक्काम समेत तमाम स्टेक होल्डर ने शिरकत की। इवेंट के दौरान SSU कमांडो, जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार नेशनल स्टेडियम, एयरपोर्ट और एतराफ के रास्तों, होटलों और प्रैक्टिस ग्राउंड पर तैनात रहेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सकलैन मुश्ताक ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया है। सकलैन मुश्ताक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।